بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو مردے کیوں روتے ہیں اور یہ کیوں دعا کرتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید کا دن نہ آئے۔ پیارے دوستوں، عید کا دن خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے۔ کبھی کبھی خوشی میں بزی ہو کر آخرت سے بھول چوک ہو جاتی ہے اور قبروں کی زیارت سے آخرت یاد آتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی انسان عید کے دن قبر کی زیارت کرے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن اس کو لازم اور ضروری سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ جیسے اگر کوئی انسان اس دن قبروں کی زیارت نہ کرے تو اس کو طعنے دینا یا اس کو حقیر سمجھنا یعنی گھٹیا سمجھنا ٹھیک نہیں ہے۔ پیارے دوستو، عید کا دن ایک خوشی خوشحالی کا دن ہوتا ہے جو سال میں 2 بار ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ پہلی خوشی اس کی یہ ہے کہ رمضان شریف کا مبارک مہینہ، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور نعمتوں کی بارش ہوئی۔ تم نے جی لگا کر مہینے بھوکے پیاسے رکھا اور رات کو یاد الہی میں گزارا۔ اس کی خوشی میں رمضان المبارک کے ختم ہوتے ہی شوال کا پہلا دن تمہارے لیے خوشی خوشحالی کا دن فکس کر دیا گیا ہے اور اس دن کو عید الفطر کہتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کا دن آتا ہے، فرشتے راستوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں کی جماعتوں، اپنے رب کریم کی طرف چلو، وہ تمہیں ایک اچھے کام کی ہمت اور حوصلہ دیتا ہے، پھر اس پر بڑا ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ تمہیں رمضان مبارک کی راتوں میں نماز پڑھنے کا حکم دیا اور تم نے نماز پڑھی۔ تمہیں دن میں روزے رکھنے کا حکم دیا، تم نے روزہ رکھا۔ تم نے اپنے رب کے حکم کو مانا، اب تم اس کا انعام حاصل کرو۔ جب نماز عید ختم ہو جاتی ہے تو فرشتے آواز لگاتے ہیں کہ تمہارے پروردگار عالم نے تمہاری مغفرت فرما دی، اب تم خوشی خوشی اپنے گھر کو لوٹ جاؤ۔ اس لیے اس دن کو انعام و اکرام کا دن کہا جاتا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینے کے لوگ سال میں 2 میلے کرتے تھے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا یعنی پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمانۂ جاہلیت میں ہم ان دنوں خوشی مناتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ان کے بجائے ان سے بہتر دن خوشی منانے کے لیے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ ایک عید الفطر ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ ہے۔ عید کے دن 2 رکعت نماز واجب ہے۔ جن لوگوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے انہیں پر عید کی نماز بھی واجب ہے، اور جو شرطیں جمعہ کی نماز کی ہے وہی شرطیں عید کی نماز کی ہے، مگر عیدین میں نماز کا خطبہ نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے اور خطبہ پڑھنا اور سننا سنت موقدہ ہے، اور عید کی نماز کے لیے تکبیر نہیں بلکہ سورج نکلنے کے بعد سب مسلمان ایک جگہ جمع ہوں۔ جب سب جمع ہو جائیں تو امام ان کو 2 رکعت نماز پڑھائے اور ہر ایک رکعت میں 3 زائد تکبیریں کہی جائیں۔ ان زائد تکبیروں کا کہنا امام اور مقتدی دونوں پر واجب ہے۔ اس کے بعد امام منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھے۔ اب باتیں یہ ہیں کہ عید تمام جیتے جاگتے انسانوں کے لیے تو خوشی کا دن ہے، لیکن مردے یہ کیوں کہتے ہیں کہ کاش کبھی بھی عید نہ آئے۔ ہم لوگ تو عید کی خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لیکن مردے عید کے آنے کا غم کیوں مناتے ہیں؟ پیارے دوستوں، کچھ مردے ایسے ہیں جو عید کے آنے پر بہت دکھ میں آ جاتے ہیں اور بہت مصیبت ان کے اوپر آنے والی ہوتی ہے، اور اس وجہ سے وہ لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں۔ جب ہم لوگ ادھر ادھر شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو عید آنے کی خوشی ہوتی ہے، عید جلدی آ جائے، لیکن مردوں کو عید آنے کا دکھ ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں انتقال کرتا ہے تو اس کے اوپر عذاب نہیں ہوتا اور قبر میں اس سے سوال و جواب بھی نہیں کیے جاتے، چاہے وہ کتنا بھی گنہگار بندہ کیوں نہ ہو۔ اگر کسی شخص کا رمضان میں انتقال ہو جائے تو رمضان کے مہینے کی برکت اس کو یہ ملتی ہے کہ رمضان بھر اس سے نہ سوال جواب ہوتے ہیں اور نہ ہی رمضان پر اس کے اوپر عذاب
चालू किया जाता है। और जैसा कि हदीस पाक का मफ़हूम है कि कब्र के अंदर मुर्दे के लिए जहन्नम की खिड़की खोल दी जाती है और वो मुर्दा कब्र के अंदर जहन्नम की तपिश को महसूस करता है। तो जो गुनहगार मुर्दे होते हैं वो इस तरह जहन्नम के अज़ाब को और गर्मी को कब्र के अंदर महसूस करते हैं। लेकिन जब रमज़ान का महीना आता है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान का चाँद देखा जाता है तो जन्नत के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है और जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। कब्र से अज़ाबात को उठा लिया जाता है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का नुज़ूल होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं तो जो मुर्दा होता है उसको बड़ी राहत मिलती है। रमज़ान के आने से मुर्दा बड़ा खुश होता है कि हमारे ऊपर से अज़ाब उठा लिया गया। जो कब्र के अंदर हमारे लिए जहन्नम के दरवाज़े खुले हुए थे वो दरवाज़े बंद कर दिए गए हैं, तो मुर्दा बड़ी राहत महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिन लोगों के ऊपर से अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान में अज़ाब हटा लिया तो ईद के बाद उनके ऊपर अज़ाब लागू होता है या नहीं। प्यारे दोस्तों, कुछ मुर्दे तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर अज़ाब लागू नहीं होता, लेकिन बहुत सारे मुर्दे ऐसे होते हैं जिनके ऊपर ईद के दिन ही जैसे रमज़ान का महीना ख़त्म होता है ज़्यादातर उसी तरह अज़ाब शुरू हो जाता है। जैसे पूरे साल वो लोग कब्र में सज़ा और अज़ाब भुगत रहे होते हैं और वो मुर्दे अज़ाब में फिर शामिल हो जाते हैं। कुछ उलमा का कहना है कि जब कोई इंसान रमज़ान के महीने में इंतकाल करता है तो इससे कब्र में सवाल व जवाब नहीं होते, और जब एक मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला किसी के ऊपर से अज़ाब को हटा ले तो फिर दोबारा उन पर अज़ाब लागू नहीं करता, बशर्त ये कि उसके लिए कोई ईसाल व सवाब कर रहा हो या मग़फ़िरत की दुआ कर रहा हो। हर मुर्दे को उसके अमाल के मुताबिक सज़ा दी जाती है। जो लोग मुसलमान होते हैं और गुनहगार होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उनको उनके गुनाहों की वजह से सज़ा देता है, और जब अल्लाह तबारक व तआला चाहता है तो उनको माफ़ कर देता है और रमज़ान में उनसे अज़ाब हटा लेता है, और फिर अल्लाह तबारक व तआला अगर चाहे तो उनको अज़ाब दे, चाहे तो फिर उनको माफ़ कर दे। और जो लोग मुसलमान नहीं होते बल्कि काफिर और मुशरिक होते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उन पर रमज़ान के बाद फिर जैसे ही ईद का चाँद नज़र आता है उन पर अज़ाब हावी कर देता है और वो फिर पूरा साल ही अज़ाब में घिरे रहते हैं। प्यारे दोस्तों, जब रमज़ान का महीना ख़त्म होता है तो रमज़ान की बरकतें भी ख़त्म हो जाती हैं। शैतान को कैद से रिहा कर दिया जाता है, मुर्दों पर से रहम का मामला ख़त्म हो जाता है। जहन्नम के दरवाज़े जो रमज़ान में बंद थे रमज़ान के जाने के बाद खोल दिए जाते हैं। जन्नत के दरवाज़ों को अल्लाह तबारक व तआला बंद फरमा देता है। इन सब बातों का मुर्दों को मालूम होता है तो रमज़ान के जाने से कब्र वाले ये सोचते हैं कि अब रमज़ान जा रहा है और फिर जैसे ही ईद आएगी उसके बाद हम पर अज़ाब को फिर से हावी कर दिया जाएगा, जिसकी वजह से वो गमगीन हो जाते हैं और रोते हैं। रमज़ान भर तो मरहूमीन की ईद होती है कि उन पर कोई अज़ाब नहीं होता। हम लोग रमज़ान के आखिरी अशरे में जब अपनी मग़फ़िरत की दुआएं अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते हैं तो फिर हमें अपने मरहूमीन के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इसाल सवाब करना चाहिए, और सिर्फ अपने ही मरहूमीन के लिए नहीं बल्कि तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को याद रखना चाहिए और उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए और उनको भी इसाले सवाब करना चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि आखिर में मुसलमान ईद उल फित्र मनाते क्यों हैं, ईद का इतिहास क्या है और ईद हमें क्या पैगाम देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईद क्यों मनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, रमज़ान का महीना इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से 9वां महीना है जो सबसे मुबारक और पाक महीना है। रमज़ान के महीने में मुसलमान पूरे महीने भूखे प्यासे रहकर रोज़े रखते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की खूब इबादत करते हैं। रमज़ान के महीने के बाद यानी कि 10वें महीने की पहली चाँद की रात भी ईद की रात होती है। चाँद दिखाई देने के बाद ईद का ऐलान कर दिया जाता है।
दोस्तों, ईद उल फित्र इबादत और अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनाम का दिन है। इस दिन मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें रोज़ा रखने की तौफीक दी, ताकत दी और हमको गुनाहों से महफूज रखा। दोस्तों, रमज़ान के मुबारक महीने में ही कुरान पाक नाजिल हुआ था। मुसलमान ईद के दिन इस बात की भी खुशियाँ और जश्न मनाते हैं। रमज़ान के पूरे महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और कामयाबी हासिल करते हैं। ईद इस बात का भी जश्न है दोस्तों, कुरान पाक के मुताबिक रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने के बाद अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को बख्शिश और इनाम देता है, इसलिए इस दिन को ईद कहते हैं। बख्शिश और इनाम की इस ईदी को ईद उल फित्र भी कहा जाता है। दोस्तों, सबसे पहले ईद को अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 624 ईस्वी में जंगे बदर की जीत के बाद मनाए थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदर की जंग में दुश्मनों को शिकस्त दी और इस खुशी में ईद मनाई थी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ईद उल फित्र हमें क्या पैगाम देता है। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि जिस तरह से तुम ईद के दिन एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत से मिलो, वैसे ही तुम लोगों के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आओ और ईद के दिन गरीबों की भी मदद करो। दोस्तों, ईद पर एक ख़ास रकम गरीबों और मज़दूरों को दी जाती है, जिसे ज़कात के नाम से जाना जाता है। मुसलमान इस रकम को ऐसे गरीबों और मजबूरों को देते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता है। मुसलमानों को इस दिन गरीबों की मदद ज़रूर करनी चाहिए। दोस्तों, अल्लाह के पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी ही सादगी से ईद मनाया करते थे। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक काम करने और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें अपने मरहूमीन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इसाल सवाब करने और उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करने की तौफीक फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारी आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के पास शेयर भी करें। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।